Good morning to all of you. I'm back. This is Tarun sir, and I'm from Arindam English speaking classes. Today, I have come with new topic that I'll discuss later. First, I want to tell you that in my last video that I uploaded on 29th July on my YouTube channel. For that video, I got very good response from my side, and I hope for my next video and upcoming videos you will give same response. Okay. Now, in our last video, I discussed the topic of phrasal verbs. Okay, phrasal verbs means the verbs containing phrases. Okay, verbs that is just like phrase. It contains more than one word that I already discussed earlier in my last video. Phrasal verb may contains two or more than two words. In our last video, I have discussed 10 phrasal verbs. Okay, and along with the phrasal verbs, I discussed sentences also based on these phrasal verbs. Now I have come with a new topic, vocabulary plus antonym and synonym plus sentence formation. But just before starting this topic, I want to tell you three forms of phrasal verbs. Now come to the topic. In our last video, we had these 10 phrasal verbs. It's boil down, okay, chop up, warm up, pig out, whip up, fry up, eat out, knock back, cut out, and cut back. First one is boil down. Boil down, three forms we have. This is present form, this is past form, and this is past participle form. Okay. First one is boil down. The second and third form is bolted down and bolted down. Second word, chop up. Second form is chopped up and chopped up. Third one is warm up. Second form is warmed up and third form is warmed up. Pig out. Second form is picked out and third form is picked out. Fifth one, whip up. Means second form is whipped up and third form is whipped up. Sixth one, fry up. Fried up, fried up. Seventh, eat out, ate out, eaten out. Eighth one, knock back and knocked back. Ninth one, cut out, cut out, cut out. And 10th one, cut back and cut back. Cut have all three form same in second form and third form of verbs. That's why we have used cut, cut and cut. There's no change in this verb. Okay. Same for this phrasal verb, cut back. Okay, now come to our next topic for today. It is vocabulary plus antonym and synonym plus sentence formation. It is new format. Okay. In many videos in YouTube, you have seen only vocabulary are discussed. Okay, only word and its meaning. But in this my video, I have brought you a different format of vocabulary. Okay, it included vocab plus antonym and synonym plus sentence formation. That will be very helpful for your preparation of your SSC examinations, all formats of SSC examinations and other examinations of teaching, just like CTET or state TET or Air Force, Navy, or any type of competitive examinations. Now let's come to the topic. First one is abstain. Abstain means बच निकलना या अलग रहना. जब हम किसी सिचुएशन से बाहर निकलते हैं या अलग हो जाते हैं, इन दैट केस वी यूज द वर्ड एब्सटेन. इट इज़ अ वर्ब. ये क्या है? एक वर्ब है, मीन्स एक क्रिया है, यानी यहाँ पे कुछ काम हो रहा है. इसका सिनोनिम होगा अवॉइड. ओके, सिनोनिम मीन्स जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? पर्यायवाची. यानी वर्ड्स हैव सेम मीनिंग्स, different words but same meanings. It is called synonym. So synonym of abstain are avoid, flinch, escape, refrain. Now come to antonym, indulge and consume. Antonym means just
opposite of this particular word, means antonym means opposite meaning of this word. Indulge and consume, these are antonym of the word abstain. Now come to sentence that containing this verb abstain. You must abstain from all flesh diet except fish, means आपको हर प्रकार की जो मांसाहारी डाइट होती है, मीन्स जिसमें मीट्स वगैरह इंक्लूड होता है, आपको हर प्रकार की जो मांसाहारी वाली जो भोजन है या डाइट है उससे आपको अलग रखना पड़ेगा खुद को, बजाय किसके, फ़िश के। यानी आप सिर्फ फ़िश खा सकते हो और बाकी आपको जितनी भी जो फ्लैश है यानी जो मीट है वो आपको खाने से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मीन्स उसको बाहर या अलग उसको रखना पड़ेगा। आपको ये सब चीज़ें आप नहीं खा सकते सिवाय मछली के। नेक्स्ट वर्ड इज बिगट। बिगट इट्स अ नाउन, ये क्या है, एक नाउन है, मीन्स एक संज्ञा है। इट मीन्स कटर। कटर मीन्स जो आदमी अपनी बात पे क्या हो, एकदम स्ट्रिक्ट हो। ओके, वो सिनोनिम क्या होगा इसका, सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज डॉगमेटिक, फैनेटिक, रिलीजनिस्ट एंड zealot. Okay, antonym are liberal, humanitarian and tolerator. And sentence, now comes to sentence containing this word. He isn't a bigot but a martinet. वो क्या है, वो एक कट्टर नहीं है बल्कि क्या है, वो अपने रूल्स को फॉलो करने वाला इंसान है। मार्टिनेट मीन्स जो इंसान अपने रूल्स रेगुलेशन को टिपिकली फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं मार्टिनेट। ओके, now comes to next word, access. इट्स ऑल्सो नाउन। इसका मतलब होता है समीप में या पहुंच में होना, यानी किसी चीज़ के आप नज़दीक में होते हैं या किसी चीज़ जो कोई भी चीज़ जो आपकी पहुंच में हो उसको हम बोलते हैं एक्सेस। इसका सिनोनिम होगा, मीन्स इसका पर्यायवाची होगा अप्रोच, एंट्रेंस एंड इंग्रेस। इसका अपोजिट वर्ड्स होंगे, यानी इसका एंटोनिम होगा एग्जिट, इमरजेंस एंड एग्रेस। इससे बेस्ड ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं एक बार। दिस स्टेयरकेस गिव्स एक्सेस टू द टॉप फ्लोर। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये आपको कहाँ ले जाएंगी, इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर ले जाएंगी। ठीक है, क्लियर। नाउ कम्स टू नेक्स्ट वर्ड, एक्सेस। Both word you are seeing that access and access, this is noun and this is also noun. What are different but pronunciation is same, it is called homonym. Okay, now come to this word access. It means अधिकता या अतिरिक्त, यानी कोई चीज़ हमारे पास जो एक्स्ट्रा होती है, सरप्लस होता है, उसको बोलते हैं हम एक्सेस, यानी बहुत ज़्यादा, लिमिट से कोई चीज़, लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ हमारे पास है उसको हम बोलेंगे एक्सेस। सिनोनिम इसका होगा, यानी सेम मीनिंग जो उसके होंगे, सरप्लस, एक्स्ट्रा एंड स्पेयर। इसका एंटोनिम होगा, यानी अपोजिट मीनिंग होगा, अपोजिट मीनिंग इसका होगा शॉर्टेज, वांट एंड स्कार्सिटी, यानी कमी। शॉर्टेज मीन्स कमी। वांट का मतलब भी, वांट का मतलब चाहना भी होता है, और इसका मतलब दूसरा मतलब क्या होता है, कमी भी होता है। मीन्स किसी चीज़ की कमी जब होगी उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वांट। ठीक है, देन नेक्स्ट वर्ड इज स्कार्सिटी। सेंटेंस बेस्ड ऑन दिस वर्ड इज यू कांट टेक एनी एक्सेस बैगेज ऑन द प्लेन। आप प्लेन पर यानी जहाज़ पर एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा बैगेज, यानी आपके जो बैग्स वगैरह जो हैं आपके पास, वो आप एक्स्ट्रा जो बैगेज है उसको आप प्लेन पर नहीं ले जा सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड, एक्सेप्ट, और यू कैन से एक्सेप्ट, वो इट इज़ अ वर्ब। एक्सेप्ट का मतलब हुआ स्वीकार करना और मानना, यानी किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी मान लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट। इट्स अ वर्ब, यानी क्रिया है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है। सिनोनिम, इसका सेम मीनिंग होगा एडमिट, अवॉव एंड कंसीड। एंटोनिम होगा इसका रिजेक्ट, एब्डिकेट एंड निगेट, यानी रिजेक्ट का मतलब हुआ नकार देना किसी चीज़ को, स्वीकार ना करना। एब्डिकेट, इस तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम रहेगा, दैट इज जस्ट अपोजिट टू दिस वर्ड। एक्सेप्ट का जस्ट उल्टा हो जाएगा,
रिजेक्ट, एब्डिकेट एंड निगेट। सेंटेंस देखते हैं इसके ऊपर, इस वर्ड के ऊपर बेस्ड जो सेंटेंस है आपके पास। टॉम डिडंट एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। टॉम जो है उसने मेरी अपॉलॉजी मीन्स होती है जो क्षमा पत्र जो होता है, क्षमा, जब हम कोई गलती करते हैं उसके बिहाफ में, जब हम उसको सामने वाले को एक लेटर लिखते हैं या कुछ उससे माफ़ी मांगते हैं, उसको हम बोलते हैं अपॉलॉजी। तो टॉम ने मेरी अपॉलॉजी यानी मेरी जो क्षमा याचना थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उसको स्वीकार उसने नहीं किया। Now come to next word, accept. Both word have same pronunciation you can see, but different spellings. It is verb and this is preposition. Okay. मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट इज इसके सिवाय और इसको छोड़कर, मीन्स किसी चीज़ को छोड़कर। जब हम किसी और चीज़ की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इंक्लूड करते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ को छोड़ देते हैं, किसी एक या दो चीज़ को छोड़ देते हैं, उस केस में हम यूज़ करते हैं वर्ड एक्सेप्ट। इसका सिनोनिम हो जाएगा आपके पास सेंस, बिसाइड्स एंड एक्सक्लूडिंग। एंटोनिम we will have include, comprise and reckon on. These all are antonym, opposite of this word. इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ में इंक्लूड करना और शामिल करना। ठीक है। सेंटेंस के ऊपर बेस्ड होगा, वी ऑल वेंट टू पार्टी एक्सेप्ट किरण। हम सब पार्टी में गए, किसको छोड़कर? किरण को छोड़कर। ठीक है। मान लो सपोज हम कोई बर्थडे पार्टी किसी की, घर के सारे मेंबर्स चले गए, लेकिन वहाँ पे एक कोई लड़का है किरण नाम का, वो उस पार्टी में नहीं गया। ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सेप्ट। इससे नाम से जस्ट पहले आएगा एक्सेप्ट। ठीक है। मतलब इसके सिवाय सारे पार्टी में गए। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज अकॉर्ड। इट्स अ वर्ब। ये क्या है? क्रिया है। इसका मतलब होता है स्वीकार करना। जस्ट लाइक दिस वर्ड एक्सेप्ट। ये आपको कोरिलेट करने के लिए मैंने बहुत सारे वर्ड ऐसे लिए हैं जिसमें सेम मीनिंग आपको इसमें नज़र आएगा और सेम प्रोनाउंसिएशन और सेम मीनिंग आपको इसमें नज़र आएगा, इसलिए मैंने इसी टाइप के वर्ड्स आपके लिए लिए हैं अभी स्टार्टिंग में। और आगे चलते चलते हम थोड़ा टिपिकल वर्ड्स का यूज़ करेंगे आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ओके। वो हमारा एडवांस लेवल होगा जिसमें हम टिपिकल वर्ड्स, टिपिकल वोकेबलरी का यूज़ करेंगे। सिनोनिम देखते हैं इसका। अकॉर्ड का सिनोनिम हो जाएगा इन सेम मीनिंग, एग्री, अलाउ, कन्फर, ग्रांट एंड फॉल इन। ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम हैं। इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा डिसएग्री, डिफरेंस और डिसअप्रूवल, यानी स्वीकार ना करना। ये क्या हो जाएगा इसका अपोजिट। सेंटेंस देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, इस वर्ड के ऊपर बेस्ड सेंटेंस, हिज बिहेवियर डजंट अकॉर्ड विद हिज प्रिंसिपल्स। क्या मतलब है इसका? जो उसका बिहेवियर है, यानी जो उस आदमी का बर्ताव है वो उसके सिद्धांतों के हिसाब से नहीं है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह उस आदमी के सिद्धांत हैं, जिस तरह के आदमी वो सिद्धांत को फॉलो करता है, उसके हिसाब से उसका बिहेवियर नहीं है। ओके, दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे एंड नाउ इट इज कंप्लीटेड। ओके, so I hope you have understood this topic and so that's all for today. So bye bye and don't forget to like and subscribe my channel. Take care. Bye bye.